Hello and welcome. Welcome to the next video of trigonometry. And till now we have seen almost all sums of practice at 6.1, right? उसका जो sixth question है prove that type वाले questions उसके almost सारे sum solve कर लिए. बस 3 questions बच गए. Okay, quickly we will discuss all the 3 questions. Okay, so the 9th question is sec raised to 4a in bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a को हमें equal to 1 बताना है. Okay, so again we want to do the same thing. We want to start with LHS. So my LHS is sec raised to 4a to bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 tan square a. Okay, so इसको हमें किसी तरह simplify करके equal to 1 बताना है. For your reference, I have noted down all the new 3 formulas that we have learnt in this chapter. Sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus cos square theta is equal to cosec square theta and 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. ये 3 नए formulas हम लोग ने इस chapter में पढ़े हैं, right? And I have also noted down all the strategies we have to solve prove that वाले sums. Okay, first is using algebra. तुम लोग a plus b the whole square use कर सकते हो, fractions को add कर सकते हो, subtract कर सकते हो, you can open the brackets. There's so many things we can do using basic algebraic principles. Okay. नेक्स्ट rationalizing the denominator we had seen. नीचे अगर समझो a plus b है तो a minus b कर दो, conjugate लिख दो और उससे multiply divide कर दो, वो दूसरा strategy है. Then use of formula. ये 3 formulas को हम लोग use कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. We can convert everything to sin and cos. And last sum का हमने देखा था, so this is 9th sum, right? 8th sum में I think हमने देखा था कि कभी कभी एक अलग equation से start करना पड़ता है. So that is another strategy. Okay. Also one different thing is यहाँ पे थीटा नहीं दिख रहा है. So अगर समझो ये मेरा triangle है, if this is my triangle A B C, either I can write this as theta या फिर theta बोलने के बजाय मैं इसको directly angle A भी बोल सकता हूँ, right? So यहाँ पे theta के यहाँ पे angle A बोला है, so it's nothing different. Theta is something theta A both are the same, बस angle का नाम अलग दिया. Okay, let us start solving. So now think, हमें इस सबको simplify करके 1 बताना है और यहाँ पे problem क्या आ रहा है? यहाँ पे sin raised to 4 है, right? अभी रेज टू 4 वाली चीजें हम लोग को सॉल्व करने नहीं आती, सो वील हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू स्क्वायर टर्म में या फिर डिग्री 1 टर्म में. सो वो कैसे करेंगे? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए द होल स्क्वायर. ओके, लेट मी राइट दैट अ लिटिल मोर नीटली. So जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा है 1 minus sin raised to 4a, right? Sin raised to 4a. So I'm going to write that as 1 square minus sin square a the whole square. Okay. ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? Again मुझे क्या करना है? मुझे इस raised to 4 वाले टर्म को स्क्वायर वाले टर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है. अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है? a square minus b square के फॉर्म में. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a square minus b square? इट इज a plus b into a minus b, राइट? थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो मैंने इस ब्रैकेट को ऐसे लिखा, ओके, और बाकी का चीज मैं वैसे के वैसे लिख दूंगा. सो माय LHS इज इक्वल टू sec raised to 4a into ये जो ब्रैकेट है माइनस 2 tan square a. ओके, so now apply this formula. a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. तो a क्या यहाँ पे 1 है, b क्या है, sin square a. sin square a is b over here. so बाकी चीजें मैं वैसे क्या वैसे लिख दूंगा. and write sec raised to 4a और यहाँ पे वो जो ब्लू बॉक्स है उसके यहाँ पे I will write a square minus b square. so a plus b, so 1 plus sin square a into a minus b, 1 minus sin square a. okay, and minus 2 tan square a वैसे के वैसे. so minus 2 tan square a. okay, so far हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं? यूजिंग द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, यूजिंग बेसिक अलजेब्रा. ये बेसिक अलजेब्रा का एक इक्वेशन हमें पता है, उसको यूज कर रहे हैं हम लोग. ओके, नाउ यहाँ पे 1 minus sin square a मिल गया. वी नो कि sin square a प्लस cos square a इज इक्वल टू 1. हम लोग को फॉर्मूला किसमें पता है? थीटा में पता है. बट द सेम फॉर्मूलाज अप्लाई फॉर एनी एंगल ना. थीटा के पे a लिख दो या b लिख दो चलेगा.
फर्क नहीं पड़ता, बट वो सेम एंगल होना चाहिए. आई थिंक माई रेड कलर इज वेरी लाइट, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस कलर. आई एम गोइंग टू यूज blue instead. So sin square a plus cos square a is equal to 1, right? So यहाँ पे थीटा की जगह पे a होगा, b होगा, c होगा, गामा होगा, साई होगा, कुछ भी चलेगा. ओके, बस एंगल सेम होना चाहिए. So I have what 1 minus sin square a. So sin square a को उस तरफ ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos square a. यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, प्लस sin square a वहाँ पे जाके माइनस sin square हो जाएगा, माइनस sin square a. तो 1 minus sin square a क्या है, cos square a. So instead of this I am going to substitute cos square a. ओके, और बाकी का सब वैसे के वैसे. सो यहाँ पे sec raised to 4 वैसे का वैसा. देन आई हैव 1 plus sin square a वैसे का वैसा. एंड इंस्टेड ऑफ 1 minus sin square a I am going to write cos square a and minus 2 tan square a वैसे के वैसे. So minus 2 tan square a. Okay, now let us think. और क्या सॉल्व हो सकता है यहाँ पे. So again I can see यहाँ पे sec है, यहाँ पे cos है, और मल्टीप्लाई हो रही है तीनों. ये ब्रैकेट sec raised to 4a and cos square a, ये तीनों चीज मल्टीप्लाई हो रही है, राइट. सो sec और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. सो आइदर मैं sec को cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ या फिर cos को sec में कन्वर्ट कर सकता हूँ. एनीवे वर्क्स. सो लेट मी कन्वर्ट दिस इन cos. ओके, क्योंकि cos sin और cos में कन्वर्ट करके सब कुछ इजी लगता है. So I'm going to convert this into cos now. Okay. So instead of writing sec raised to 4a, I'm going to write 1 upon cos raised to 4a, and बाकी सब I'm going to write as it is. So 1 plus sin square a into cos square a minus 2 tan square a minus 2 tan square. So I can see ये कट हो जाएगा, राइट. यहाँ पे cos square है, यहाँ पे cos raised to 4 है, ये पूरा पूरा cos square a और यहाँ पे cos raised to 4 का cos square a हो जाएगा. ओके, so what am I getting? I am getting यहाँ पे 1 plus sin square a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे क्या बच रहा है, cos square a, एंड यहाँ पे minus 2 tan square a. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. अगेन यहाँ पे हम लोग ने कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की थी, इस स्टेप से इस स्टेप में वी यूज द फॉर्मूला. ओके, थर्ड स्ट्रेटेजी यूजिंग फॉर्मूला. नाउ then again we use some algebra, and again we're going to use algebra to separate this fractions. Okay, ये 1 divided by cos square theta cos square a और sin square a भी divided by cos square a है. So I'm going to separate both of them. So I will get 1 upon cos square a plus sin square a upon cos square a minus 2 tan square a वैसे के वैसे. Okay, so 1 upon cos square a क्या होगा, 1 upon cos square a will be sec square a. So let me write that, sec square a. Sin square a upon cos square a, that will be tan square a. So plus tan square a minus 2 tan square a. Now just see if anything is cancelled. Plus tan square a minus 2 tan square a. So ये किसके जैसे हो गया, this is like saying plus x minus 2x. So plus x minus 2x क्या होता है, minus x हो जाता है, राइट. सो यहाँ पे भी plus tan square a minus 2 tan square a, ये दोनों को सॉल्व करके I will get minus 2 tan square a. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा minus, sorry not minus 2, not minus 2, only tan square a, right. Minus x plus x minus 2x is minus x, so minus tan square a. और यहाँ पे minus x और यहाँ पे sec square a वैसे के वैसे, sec square a. Again now think, तुम लोगों को क्या चाहिए, 1 चाहिए. So is sec square a minus tan square a 1? Again look at the formula. What formula you all know which connects both of these? इन दोनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है 1 plus tan square a is equal to sec square a, right. So ये जो tan square a है, इसको अगर तुम लोग RHS में लेके जाओगे, so sec square a minus tan square a मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1. So this is equal to 1 using formula. Okay, so I will write this is equal to 1, which is equal to RHS, and hence we have proved.
सो बेसिकली इसमें सिर्फ हम लोग ने अच्छा अलजेब्रा यूज किया, हम लोग ने कोई फैंसी टेक्निक यूज नहीं की। यहाँ पे रेज टू 4 वाला टर्म था, उसको स्क्वायर वाले टर्म में कैसे कन्वर्ट किया, वी यूज दिस फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले भी अलजेब्रा यूज किया, फिर बाद में एक बार फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, एंड अगेन सम अलजेब्रा कैसे यूज किया, हम लोग ने फ्रैक्शन को अलग अलग कर दिया, देन वी कन्वर्टेड इनटू साइन एंड कॉस, क्योंकि साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके थोड़ा इजी हो जाता है, एंड देन अगेन सम अलजेब्रा, एंड फाइनली और थोड़ा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके we've got the required RHS. Okay, so that's your question number 9 of proof that. So I had made one small mistake. यहाँ पे मैंने 9th sum लिखा था, it was not the 9th sum, it was the 11th sum. Okay, and मैंने बोला भी था that we are solving the 9th sum. 9th sum we had already solved in the previous video. So जो पिछला sum हम लोग ने solve किया था that was your 11th sum, and now we are solving the 10th sum. Last 3 sums बाकी है, 10, 11, 12. Okay, so let's start solving the 10th sum. So again I'm going to write the LHS first. So LHS is equal to tan A upon 1 plus tan square A the whole square plus cot A upon 1 plus cot square A the whole square. और इसको क्या प्रूव करना है, we have to prove it equal to sin A into cos A. Okay, equal to sin A into cos A, ये हमें प्रूव करना है। तो अगेन आई कैन सी यहाँ पे LHS में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, whereas RHS में बहुत इजी दिख रहा है। सो ये कॉम्प्लिकेशन को हम लोग को इजी करना है यूजिंग सम सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स, और ये सब ऑप्शंस है हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए। तो द फर्स्ट थिंग आई सी इज, सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया है, यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर ए दिया है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर आई कैन डायरेक्टली राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए एज sec स्क्वायर ए यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए आई कैन डायरेक्टली राइट cosec स्क्वायर ए यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो पहले मैं उस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए। सो sec स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर भी एक ब्रैकेट है, सो 1 प्लस tan स्क्वायर है sec स्क्वायर ए हो जाएगा, बट बाहर एक ब्रैकेट भी है स्क्वायर वाला, तो उसको वैसे के वैसे लिखा है मैंने। सिमिलरली आई डू इट हियर, cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए विल बी cosec स्क्वायर ए, सो cosec स्क्वायर ए, एंड बाहर से एक पूरा ब्रैकेट। सो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, इफ आई राइट x स्क्वायर द होल स्क्वायर, सो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो x रेज टू 4 हो जाएगा वो। सिमिलरली इट इज गोइंग टू प्ले आउट हियर। ओके, सो ये sec रेज टू 4 हो जाएगा। सो आई विल राइट न्यूमरेटर्स वैसे के वैसे tan a अपॉन sec रेज टू 4a प्लस cot a अपॉन cosec रेज टू 4a। ओके, cosec रेज टू 4a। ओके, नेक्स्ट अभी सो फार व्हाट ऑल वी हैव डन, हम लोग ने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, वी हैव यूज्ड आवर थर्ड स्ट्रेटजी, यूज फॉर्मूला। ओके, एंड देन फ्रॉम सेकंड स्टेप टू थर्ड स्टेप वी हैव यूज्ड अलजेब्रा, ये नॉर्मल अलजेब्रा है, राइट। सो उस अलजेब्रा के यूज करके हमें ये मिला। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, क्योंकि tan cosec sec इतने 4 अलग अलग टर्म्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सो आई convert it in sin and cos so that it's easier for me to understand. Okay, so what is tan A? Tan A will be sin A upon cos A, right? And okay, before writing this, just so that हमारा जो conversion है sin and cos में वो थोड़ा easy हो जाए, उसके लिए मैं एक और step करने वाला जो simplify कर देगा। Okay, what is that step? I will write tan A multiplied by 1 upon sec raised to 4a. Okay, और यहाँ पे I will write cot A multiplied by 1 upon cosec raised to 4a. So I can write that, right? क्योंकि इसको अगर ये fractions को multiply करना है, how do you multiply fractions? Numerator को numerator से, denominator को denominator से. So tan A into 1 will be tan A. Sec raised to 4 into 1, tan A के नीचे कुछ भी नहीं है तो divide by 1 assume कर सकते हैं. So sec raised to 4 into 1 is equal to sec raised to 4. तो इसको simplify करके मुझे ऊपर वाला term मिल रहा है, यानी ये mathematically correct है. And this is going to simplify my conversion into sin and cos. Okay. So now let us start converting.
सो tan a की जगह पे व्हाट विल आई राइट, sin a अपॉन cos a इनटू 1 अपॉन sec रेज टू 4a। 1 अपॉन sec क्या होता है, cos होता है, तो cos रेज टू 4 ऊपर आ जाएगा, सो cos रेज टू 4a प्लस cot a, cot क्या होगा, sin अपॉन cos का रेसिप्रोकल, सो cos a अपॉन sin a एंड व्हाट इज 1 अपॉन cosec, cosec क्या होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है, तो ये sin पूरा ऊपर चला जाएगा, सो आई विल गेट sin रेज टू 4a एंड लेट अस सी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आई कैन सी यहाँ पे cos a है और यहाँ पे cos रेज टू 4 है, तो cos रेज टू 4 का cos क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे sin है और यहाँ पे sin रेज टू 4 है, तो sin रेज टू 4 का sin क्यूब हो जाएगा। 4 है, उसमें से एक नीचे कैंसिल हो गया तो 3 बच जाएंगे। ओके, नाउ what are we getting because of that step, I am getting sin a cos cube a plus I am getting यहाँ पे cos a into sin cube a। ओके, नाउ थिंक, यहाँ पे अब तुम क्या कर सकते हो, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। व्हाट आई कैन सी वेरी इजीली इज, यहाँ पे आई कैन सी एक साइन है और यहाँ पे 3 साइन क्यूब है, whereas the other term यहाँ पे आई कैन सी 3 cos है। okay, let me use a different color, यहाँ पे आई कैन सी द 3 cos terms एंड यहाँ पे 1 cos term, तो दोनों में से sin और cos को मैं कॉमन ले सकता हूँ, राइट। सो लेट मी डू दिस ऑन दी अदर साइड। So I have, let me write that step again, okay, so sin a cos cube a plus cos a sin cube a, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से sin भी कॉमन है, दोनों में cos भी कॉमन है, so I'll take sin कॉमन पहले, तो sin a को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे से sin निकल जाएगा, राइट। यहाँ पे जो sin a है ये निकल जाएगा एंड यहाँ पे जो साइन क्यूब है उसमें से एक निकल जाएगा। ओके, सो आई विल गेट, यहाँ पे साइन ए निकल गया तो सिर्फ cos क्यूब ए बच गया, प्लस यहाँ पे cos ए तो बचेगा ही, प्लस साइन क्यूब में से एक निकल गया तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, सो साइन स्क्वायर है, तो मैंने एक बार साइन कॉमन ले लिया, बट अभी इसके अंदर cos भी कॉमन है, आई कैन सी यहाँ पे cos क्यूब है और यहाँ पे cos a है, तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में आई विल टेक cos को बाहर, sin a को ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया था, तो sin a एक, अब क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, cos को, सो cos है, सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे cos क्यूब था उसमें से एक बाहर चला गया तो cos स्क्वायर हो जाएगा, सो cos स्क्वायर है प्लस वापस यहाँ पे से cos स्क्वायर, cos a निकल गया तो क्या बचा, sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर a मिल गया, सो आई नो व्हाट दैट इज, राइट। Sin square theta plus cos square theta is 1, so cos square a plus sin square a will also be 1, so that will be 1, so I will get sin a into cos a into 1, into 1 तो सेम ही होता है, so I can write this as sin a into cos a, और यही तो हमें चाहिए था, right, sin a into cos a, that is equal to my RHS, and hence I have proved this part also, so we are also done with the 10th sum, so 10th sum हो गया, 9th sum हो गया, sorry 10th sum हो गया, 11th sum हो गया, the last sum which is remaining is the 12th sum। okay, last sum for this practice set। okay, so यहाँ पे if you see LHS काफी simple लिख रहा है, RHS काफी difficult लग रहा है। okay, so you all might want to try to do it from RHS to LHS, so you all can also try that। okay, RHS से शुरू करो और फिर बाद में LHS आने की कोशिश करो, maybe that could work out, but I'm going to try by starting out from LHS only, and let's see what happens। okay, so let me start with LHS। my LHS is equal to tan theta upon sec theta minus 1। okay, so immediately I can see नीचे a minus b वाला फॉर्म है, sec theta minus 1, जब भी ऐसा फॉर्म होता है I generally like to use rationalizing the denominator, so यहाँ पे a minus b है ना, तो तुम लोग a plus b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो यहाँ पे sec थीटा माइनस 1 है, सो मैं मल्टीप्लाई करूंगा sec थीटा प्लस 1 से, और नीचे जहां जिससे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा sec थीटा प्लस 1, सो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय sec थीटा प्लस 1, एंड लेट अस सी व्हाट वी गेट। न्यूमरेटर में तो वही चीज मिलेगी, सो आई विल गेट
tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा प्लस 1. ओके, नीचे क्या मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए मेरा sec थीटा है, सो sec स्क्वायर थीटा minus 1 square, right? A square minus B square, but 1 square I already know, 1 square तो 1 ही आने वाला है, so I will write sec square theta minus 1. Again sec square theta minus 1, कुछ याद आ रहा है? I can see, I know that 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. यहाँ पे क्या चाहिए, sec square theta minus 1, तो ये plus 1 को वहां पे लेके जाओ, तो sec square theta minus 1 मिल जाएगा. What will I be left with? Tan square theta. तो sec square theta minus 1 will be tan square theta. So इसके यहाँ पे I will write tan square theta. So I am getting tan theta multiplied by sec theta plus 1 upon tan square theta. Okay. अभी ऊपर tan थीटा है, नीचे tan स्क्वायर थीटा है, so that is going to get cancelled. So tan थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 1 हो जाएगा, राइट? सिर्फ tan थीटा बचेगा, not tan स्क्वायर थीटा. So what am I getting? I am getting this as sec theta plus 1 upon tan theta. Now what we will do? यहाँ तक तो पहुंच गया, अभी आगे इसके आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके, और इतना सॉल्व करने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग आरएचएस के पास पहुंचे, कहीं पे भी आगे का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम लोग ने जिससे शुरुआत की थी वही मैं लिखने वाला. हम लोग ने एलएचएस से शुरुआत की थी, राइट? सो एलएचएस में क्या था, हमारे एलएचएस में था वी हैड tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, और हमें क्या मिला है, दिस वाज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. कुछ स्पेशल नजर आ रहा है इसमें, तुम लोग कुछ तो पैटर्न दिख जाना चाहिए था अब तक. दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल. मैंने क्या किया, इसको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया, और यहाँ पे एलएचएस जिससे शुरुआत की थी, एलएचएस या फिर एलएचएस, वो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया. सो एलएचएस को ही सॉल्व करके हमें ये मिला, ये दोनों इक्वल है, राइट? इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है. आज इसमें तुम्हें क्या चाहिए, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1, फिर नीचे क्या चाहिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1. तो ये सब कुछ यहाँ पे है. तो अगर मैं बस इन दोनों रेशियोज को ऐड कर सकूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. कर सकते हैं ऐड रेशियोज अपने आप से? ऐसा कोई थियरम पढ़ा है कि हम लोग ने? द आंसर इज यस. 9th स्टैंडर्ड में वी हैड स्टडीड अ थियरम कॉल्ड एज थियरम ऑन इक्वल रेशियोज, जिससे हम लोग रेशियोज को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं, और उस सेम वो जो आंसर आएगा ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो रेशियो विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल रेशियोज. ओके, सो आई विल यूज थियरम ऑन इक्वल रेशियोज. Let me write that on the right hand side. So I'll write this step again on RHS. In RHS, I am writing tan theta upon sec theta minus 1 is equal to sec theta plus 1 upon tan theta. So using theorem on equal ratios, okay? Using theorem on equal ratios, what am I getting? Using theorem on equal ratios, इनको मैं ऐड करके इक्वल टू ओरिजिनल रेशियो दिखा सकता हूँ. तो मुझे ओरिजिनल रेशियो क्या चाहिए, एलएचएस में देखो, एलएचएस में क्या है, एलएचएस में आई हैव tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, तो उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया. ओके, sec थीटा माइनस 1, और यहाँ पे इक्वल टू मैं इन दोनों रेशियोज को ऐड करके लिखूंगा. So I will get tan theta plus sec theta plus 1 divided by, इन दोनों को ऐड करना है, तो sec theta plus नहीं, यहाँ पे -1 है, so -1 plus tan theta. तो क्या किया मैंने, LHS को वैसे के वैसे लिख दिया और RHS में दोनों को ऐड करके लिख दिया. कौन अलाउ कर रहा है मुझे, थियरम ऑन इक्वल रेशियोज मुझे अलाउ कर रहा है. ओके, सो आई हैव डन दिस. तो अभी बस मुझे आ गया, LHS तो सेम टू सेम आ गया, RHS का न्यूमरेटर सेम टू सेम आ गया, बस यहाँ पे मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है. यहाँ पे -1 है और यहाँ पे प्लस tan थीटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो यहाँ पे tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन, नाउ मुझे कैसे लिखना है, पहले tan थीटा को लिखना है, तो tan थीटा को मैं पहले लिख दूंगा,
फिर मुझे क्या लिखना है, प्लस सेक थीटा, तो प्लस सेक थीटा को बाद में लिखूंगा एंड -1 को लास्ट में लिखूंगा. सो दैट्स हाउ आई हैव प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS आ गया. दैट्स हाउ आई हैव प्रूव्ड. और आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर थिंग हियर हमारी स्ट्रैटेजीज में, यूजिंग थियरम ऑन इक्वल रेशियोज. ये भी तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी हो सकता है टू सॉल्व एनी टू प्रूव वाला प्रॉब्लम. तो इतने सारे स्ट्रैटेजीज है अपने पास. और ये अलजेब्रा जो एक ही स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज छुपे हैं. अलजेब्रा वाला जो स्ट्रैटेजी है उसमें तुम लोग फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फ्रैक्शंस को सेपरेट कर सकते हो, तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हो, फ्रैक्शंस को. You all can open the brackets, you all can take common, you all can also apply formulas such as a plus b the whole square, a square minus b square. ये सारे चीजें अलजेब्रा वाले तुम्हारे स्ट्रैटेजी में आते हैं. ओके, so these are all your strategies and we are done with all the prove that types of sum of practice at 6.1. okay.